Hello and welcome to Ignited Minds. Welcome to the newspaper analysis of 9th of the August 2028. The news articles which are mentioned and highlighted on your screens will be discussed in this video. If we talk about the first news article, it is about Bangladesh, and this news article will be merged with one more editorial which came in the changes in Bangladesh and the challenges for India. So these two news articles will be discussed together. One more news article talks about the just transition in India and the latest case in which the climate right was recognized by the Supreme Court of India. Next, there is one more short editorial about the guilty on search, which is for the Google's monopolistic activities and its monopolistic policies. Next, there is an in-depth editorial about the monetary policy and the financial markets changing in the current dimensions, with other banks and countries taking toll on it. Next, we will also see one more editorial on the development and perspectives of Himalayan towns and the Himalayan states. We will see some basics about the Waqf bill which was presented in Parliament yesterday. There are short news articles about the approval of drugs, Shivanadiyas, and UPI and the payment of taxes. Lastly, we will see a place in news which is the Kursk region in Russia, which is under attack from the Ukrainian troops. Let's begin the discussion with a UPSC PYQ which was asked in 2024. This question asks and confuses the students about the era because it says who of the following rulers of medieval India gave permission to Portuguese to build a fort at Bhatkal. And we have seen a similar question in 2023 paper also, which was about the rural or the ruler of this land of Goa, under which the Portuguese Nino de Cunha he secured the Sultanate, the areas from the medieval rulers. Similar thematic question was asked in 2023 and 2024 both. So the current answer, you can say correct answer for this question was Krishna Devaraya. And Krishna Devaraya of Tuluva dynasty of Vijayanagar Empire, he actually gave this land to Albuquerque in 1510 to build the fort at Bhatkal. Done. Let's begin the newspaper discussion. And the first news article talks about Muhammad Yunus. Who is Muhammad Yunus? Basically, he is a Bangladeshi entrepreneur, a banker, and an economist, politician, and a civil society activist who was awarded Nobel Prize for Nobel Prize for Peace in 2006. He is now being called for holding, and he is now being asked to serve as a chief advisor for the interim government of Bangladesh. ठीक है, तो this was about Muhammad Yunus and who was he? He basically contributed into the microcredit for and microfinance because he gave the concept of Grameen banks, ठीक है, for development. He also received other national and international honors from USA. One of these was the US Presidential Medal for Freedom in 2009. So he is a reputed person, and he is the person who is someone who supports democracy, who supports the liberalism, and who supports the ideas of liberty and freedom. And he is now and he is one of those who is popular in Bangladesh, and he is the one who has been chosen by the military. Usually this is not an act which military does in terms of coup. Whenever the coup happens in any country, this is not a usual tradition.
in the coup scenarios, but here there is a changing dimension in such scenario. Now, this editorial also talks about the challenges which India is facing, and this editorial highlights because the Muhammad Yunus, Mr. Yunus, is a passionate supporter of democratic values and rule of law. He is also known as Hasina Beta on account because how she treated him and how he had to leave the country and all. This editorial actually talks about what are the issues with respect to India, because it's not only Bangladesh, and it's actually Myanmar and Maldives who are going through a similar kind of, you can say, a turmoil in which there was an anti-India sentiment in both of these countries. So this actually poses a bigger picture in which the Foreign Secretary Shiva Shankar Menon also called back from Colombo recently, and at that point of time, this editorial, the author of this editorial says that we were some of the few people who were at that point when Hasina came to power. Okay, so this is something which actually talks about the Bangladesh's turmoil. It highlights what are the factors in the public opinion, basically, for the recent coup. The factors are, however, this Bangladeshi chief Wakaruzzama, who stepped into the situation of anti-discrimination student movement and supported it. And actually, in 2024, the recent turmoil which we have seen, the army is seeing more facilitating the will of the people by driving out the prime minister. Okay, so here we can see that army is in support of people, and army is supporting the democracy and democratic values and the other things. However, the chief concern for India is saving the minorities, the minority Hindus in the country Bangladesh. The author also highlights that India was the first country जिसने ये चीज highlight की थी at the international platforms of United Nations Security Council and UNGA about the religiophobia, or you can say Islamophobia, or of non-Abrahamic religions in these countries, ठीक है, which are in the neighborhood of India. And corresponding to this, India also passed the Citizenship Amendment Act also. Okay, so these are some of the points of this editorial. This is more of an important editorial which I wanted to discuss in detail with you. This editorial actually talks about the just transition. So what is basically just transition being discussed over here? ये चीज हमने इससे पहले भी डिस्कस की हुई है, that in the MK Rajat Singh case and others versus Union of India, the Supreme Court of India recognized the case of climate right. What do we mean by climate right? And Supreme Court gave the recognition that human rights against the adverse impacts of climate change consist uh, are actually derived from the fundamental rights of Chapter 3rd of the Indian Constitution. Uh, Taking a pragmatic position, Supreme Court also highlighted the this author also highlighted the Great Indian Bustard and Climate Action Verdict. ठीक है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? जस्ट ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि आप एनर्जी डोमेन को चेंज कर रहे हो फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी टू रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, लाइक आप फॉसिल फ्यूल्स से हट के जा रहे हो सोलर या विंड एनर्जी पे, बट दिस ट्रांजिशन इज अफेक्टिंग एनवायरमेंट. अब आप बोलोगे ये तो एक्चुअल में इसलिए बनाया गया था, ये तो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, एनर्जी ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो. बट यहाँ पे एक ऐसा इशू निकल के आ रहा है, दिस जस्ट ट्रांजिशन केस. इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है दैट हैबिटाट ऑफ सम ऑफ द बर्ड्स एंड हैबिटाट ऑफ सम ऑफ द इकोलॉजिकल फ्लोरा एंड फौना इज गेटिंग अफेक्टेड. हाउ? जैसे यहाँ पे केस है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का एंड द क्लाइमेट एक्शन वर्डिक्ट, बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल विंड फार्म्स एंड लार्ज स्केल विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन, दिस इज हैपनिंग. ठीक है, इनके हैबिटाट पे, इनके रहने पे, इनके दी फ्लाईवे ऑफ दीज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स
is impedimented by the construction of these solar wind farms. अब इससे हो क्या रहा है? The court's decision, however, is yet to come out. The just transition is actually to facilitate equitable and inclusive climate action. What is this equitable and inclusive climate action? Is to achieve both the objectives. One is to shift to renewable energy, to shift to greener energy, and along with this, we also need to conserve the habitat of these birds and habitat of this flora. ठीक है, यहां तक दिस fauna, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। इसके साथ साथ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि this just transition verdict will be a new groundbreaking initiative, because the non-human environment is also a entity in the concept of just transition, क्योंकि यहाँ पे आप birds life वाइल्ड लाइफ को भी कंसिडर कर रहे हो। This will also bolster the research on transition litigations in India, because जब भी transition litigations आती है, like आपने कहीं पे HEP बनाया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया, तो इसकी वजह से लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होती है। आपने कहीं पे भी विंड फार्म बनाया या सोलर फार्म बनाया, या आपने सोलर पावर प्लांट लगाया ओवर अ लेक, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स हमने देखे रिसेंटली न्यूज में। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है, इन सब चीजों से एनवायरनमेंट पे इफेक्ट तो आ रहा है। उस इफेक्ट में जाने के लिए वंस दी इनिशिएटिव इज टेकन, जैसे कहीं पे अगर हमने एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया, तो उसकी वजह से जो लेक था, उसमें लार्ज स्केल डेथ होना स्टार्ट हुआ। एंड नाउ द क्लाइमेट एक्टिविस्ट इज सीकिंग जस्टिस ऑन द बिहाफ ऑफ द एनवायरनमेंट, on the behalf of the livelihood of that, on the behalf of the life of those who were non-human entities who were living in that environment, that ecosystem of the lake. दैट इज द प्रॉब्लम, जहां पे ये जस्ट ट्रांजिशन के केसेस आ रहे हैं। ठीक है, जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है वो लड़ रहे हैं इस चीज पे कि आप डीकार्बोनाइजेशन कर रहे हो। डीकार्बोनाइजेशन मींस यू आर ट्रांजिशनिंग, आप वो चीजें अडॉप्ट कर रहे हो, वो एनर्जी के रिसोर्सेज अडॉप्ट कर रहे हो जहां से कार्बन एमिशन कम होगा। ठीक है, द कार्बन एमिशन विल डिक्रीज, यू विल डीकार्बोनाइज द एनवायरमेंट। बट उसकी वजह से हो क्या रहा है? उसकी वजह से ये हो रहा है कि वहाँ का जो लोकल एनवायरनमेंट है वो हैम्पर हो रहा है। वहाँ के जो बर्ड्स है, वहाँ के जो एनिमल्स हैं, घड़ियाल है, फिशेस है, दे आर गेटिंग इम्पैक्टेड। ठीक है, the concept of just transition actually emerged in 1970s as a tool to protect the workers whose jobs are being threatened by increasing environmental regulations. Then in 2015, it was included in the International Treaty of Climate Change, that is the Paris Agreement. तो ये भी याद रखना है कि Paris Agreement do mention the just transition. ठीक है, इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है that there is this Sabin Center for Climate Change Laws in USA, which noted that the just transition does encompass other persons in vulnerable situations. लाइक कौन कौन से पर्सन्स है जो जस्ट ट्रांजिशन यहाँ पे इंक्लूड करता है? वन आर द इंडिजिनियस कम्युनिटीज लाइक ट्राइब्स ऑफ दैट रीजन, वुमेन, चिल्ड्रन, माइनॉरिटीज, बिकॉज ऑफ देयर प्री एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटी, ऑलरेडी वो वल्नरेबल सेक्शंस थे, वो डिप्रेस सेक्शंस थे। इसके साथ साथ नाउ दे आर कमिंग टू दी एडवर्सिटी ऑफ डीकार्बनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, वहां पे एचईपी लग रहा है, तो लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ट्राइबल कम्युनिटीज का। तो ये जो लोग ऑलरेडी एडवर्सली अफेक्टेड थे बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ, बिकॉज ऑफ द प्रोविजंस विच वी हैव बीन सीइंग इन द सोसाइटी, माइनॉरिटीज, अब उन पे एक और इम्पैक्ट आ रहा है, वो है डीकार्बनाइजेशन का। तो ये सब चीजें हमें देखनी है। तो इसीलिए द कोर इशू विच इज बीइंग डिस्कस्ड इन दिस MK रजत सिंह केस वाज द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेट दिस एंडेंजर्ड बर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक एंडेंजर्ड बर्ड है, बिकॉज इस पे जो इम्पैक्ट आ रहा है वो सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो नाउ द ऑथर सेज कि ये जो केस है, इस केस ने एक दूसरा डायमेंशन खोल दिया है हमारे लिए। एंड वो डायमेंशन क्या है? वो डायमेंशन ये है कि हम लोग अब इस चीज पे आ जाए कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या ये जस्ट ट्रांजिशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स इस चीज को इंश्योर करें कि डीकार्बनाइजेशन की वजह से जो है
बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन भी साथ में लिया जाए इसके, देयरफॉर इट डज स्टैंड फॉर अ जस्ट अपोज ऑफ डीकार्बनाइजेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, कि दोनों चीजें होनी चाहिए, because decarbonization and biodiversity protection they do not exist in disjunctive silos. ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ये दोनों चीजें एक साथ अचीव करनी है. That is what this case opens up a larger dimension. Therefore climate litigation and climate jurisprudence becomes important for us. और यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं मेंस में. ठीक है, और यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं अबाउट दीज की आइटम्स, या एम के रजतसन केस में क्या जजमेंट आया था, क्लाइमेट राइट क्या है, ये किस फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, ये क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ सकते हैं, बिकॉज बहुत ही ज्यादा डिस्कस्ड आर्टिकल है इन द न्यूज़पेपर्स एंड वेरियस मैगजीन्स, डाउन टू अर्थ मैगजीन, बेटर इंडिया में, हर जगह पे इसको डिस्कस किया जा रहा है. ठीक है, नाउ इसका मतलब क्या है? तो क्या हम एंटी एनर्जी ट्रांजिशन लेके जा रहे हैं अपने आप को, या एंटी क्लाइमेट लेके जा रहे हैं अपने आप को? शुड वी स्टार्ट डीकमिशनिंग दीज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लाइक सोलर पावर प्लांट्स, विंड फार्म्स? क्या हम इनको रोकते? तो ऐसा नहीं है. दिस शुड नॉट बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस केस. रादर व्हाट वी शुड डू, वी शुड अडॉप्ट अ हार्मोनियस अप्रोच इन टर्म्स ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस. लास्टली अगर आप देखो तो लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच एक रिपोर्ट निकाली है. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये एक रिपोर्ट निकाली अबाउट लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स, विच सेज कम से कम 20 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में, जो ऑलरेडी कहाँ पे है, डिस्प्यूट में है अबाउट दिस. ठीक है, हाउएवर दिस केस पोजेज अ न्यू वाटरशेड मूवमेंट फॉर इंडिया टू इंक्लूड द जस्ट ट्रांजिशन जूरिस्प्रूडेंस इन इट्स डोमेन. ठीक है, नेक्स्ट एडिटोरियल, ये चेंज इन बांग्लादेश हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. इसके बाद हमारे पास एडिटोरियल आता है दिस एंटी ट्रस्ट केस ऑफ यूएसए एंड द एंटी ट्रस्ट केस ऑफ गूगल, जिसपे अभी रिसेंटली वर्डिक्ट आया था. एंड दिस एंटी ट्रस्ट केस, ये एक्चुअल में केस था क्या, ये भी समझते हैं पहले. ठीक है, दिस एंटी ट्रस्ट केस वाज अगेंस्ट गूगल, और ये केस कहाँ पे था, ये यूएस में केस था. यूएस में ये जो केस है एंटी ट्रस्ट केस, इसमें दो चीजें कंबाइन की गई थी, दो केसेस को कंबाइन किया गया था. वन वाज द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस गूगल एंड कोलोराडो वर्सेस गूगल. ठीक है, ये दो केसेस थे यहाँ पे जिनको यहाँ पे डिस्कस किया गया था. वन वाज द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस गूगल एंड अनदर वाज कोलोराडो वर्सेस गूगल केस. पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये था कि गूगल की एक मोनोपोली हो गई है इन दी एंड्रॉइड मार्केट एंड आईओएस मार्केट, बिकॉज गूगल हर एक फोन के ऊपर प्री इंस्टॉल्ड आता है एज अ सर्च इंजन, जिससे बाकी सर्च इंजन जैसे याहू वगैरह वो इस मार्केट में नहीं आ रहे हैं. इसकी वजह से अब गूगल जो है अपनी मोनोपोलिस्टिक पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है, because of the preloading of Google search engine into the handsets as a default search engine. ठीक है, ये चीजें यहाँ पे डिस्कशन में आ रही थी, और यहाँ पे रिसेंटली हमने देखा दैट जो यहाँ पे जज थे उन्होंने गूगल को एक पेनल्टी भी लगाई एंड उन्होंने बोला कि गूगल जो है मोनोपोलिस्टिक एक्टिविटीज कर रहा है. नाउ लेट्स सी कि इसके बाद क्या आने वाला है, और इससे होगा क्या. इससे ये होगा कि एप्पल, जिसका गूगल के साथ टाई अप है, और एंड्रॉयड या सैमसंग के फोन्स जिनका गूगल के साथ टाई अप है, वो अपना रेवेन्यू लूज करने लग जाएंगे. दैट इज समथिंग विच इज बीइंग डिस्कस्ड इन दिस एडिटोरियल. बस इतना था इस एडिटोरियल में डिस्कशन के लिए. ठीक है, इसके बाद आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वन मोर एडिटोरियल which is about the India's monetary policy and the financial markets changing position. This editorial talks about the recent global market changes. Recent global market changes में क्या है? The banks attempts, जो ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज के बैंक्स हैं, ये क्या कर रहे हैं अभी, ये इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, और जो इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कम हो गई है. ठीक है, क्योंकि हमने देखा
पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी बहुत मुश्किल हो गई थी। अब इन दोनों चीजों को, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को वापस बूस्ट करने के लिए, रिसेशन से निकलने के लिए, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट रेट्स का यूज कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स को ट्विस्ट कर रहे हैं। जैसे जापान में आज तक हमने देखा जीरो इंटरेस्ट रेट हुआ करता था, बट जापान ने भी रिसेंटली अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से बाकी सारे वर्ल्ड में जहां जहां पे भी जापानीज इन्वेस्टमेंट था, वो इम्पैक्ट में आ गया, क्योंकि वहां से अब जापानीज इन्वेस्टमेंट वापस निकल के जापान जाएगा, क्योंकि उनको जो जीरो रेट पे पैसा मिल रहा था वहां पे उनको अब टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो कहीं से इन्वेस्टमेंट वापस निकाल के जापान में इंटरेस्ट रेट पे करेंगे अपने बैंक को। इसी चीज की वजह से द फाइनेंशियल मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड आर चेंजिंग। ठीक है, पहली चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा था, दूसरा जापान का डिसीजन टू रेज इट्स इंटरेस्ट रेट्स, एंड तीसरा इन्फ्लेशन एंड रिप्रेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये तीन चीजें। सो वॉज देयर एक्चुअली अ थ्रेट ऑफ रिसेशन? द एडिटोरियल हियर हाईलाइट्स कि एक्चुअल में थ्रेट ऑफ रिसेशन नहीं था, बट दिस वॉज जस्ट अ परसेप्शन। ठीक है, so solving the inflation by interest, by increasing the unemployment, solving inflation by increasing unemployment represents an unfair burden being placed on the workers. ठीक है, बिकॉज इन्फ्लेशन के साथ साथ अगर अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है, इन्फ्लेशन भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, दिस इज सच अ कंडीशन जहां पे जो लो वेज वर्कर्स होते हैं, जो कम कमा रहे हैं, उनके इनकम पे, उनके एक्सपेंडिचर पे एक टोल क्रिएट होगा, वहां से सेविंग्स नहीं होंगी और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करेंगे अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करने में। ठीक है, और इसी चीज की वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस आ रहा है बहुत सारे देशों में। यहाँ पे दो टर्म्स है जो है यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। सबसे पहले है शैम रूल। व्हाट इज दिस शैम रूल? इट सेज that what is of note that economy wasn't actually in recession. The market just expected कि रिसेशन आने वाला है, तो मार्केट का परसेप्शन, मार्केट का सेंटिमेंट, दिस इज समथिंग विच वाज हाई इन द ग्लोबल मार्केट, बिकॉज इसी सेंटिमेंट की वजह से हुआ क्या, इसी सेंटिमेंट की वजह से ले ऑफ्स हो गए और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। सो रिमेंबर, मार्केट सेंटिमेंट की वजह से क्या हो सकता है। ठीक है, और यहीं पे आता है शैम रूल। शैम रूल क्या बोलता है, या सैम रूल क्या बोलता है, दैट द ऑटोमेटिक डिसबर्सल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेक्स, कि आप क्या करते हो, अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसके लिए आप मेजर्स लेना स्टार्ट करते हो और अनएम्प्लॉयमेंट चेक्स लेना स्टार्ट करते हो। व्हाई? टू हाउसहोल्ड्स, बिकॉज देयर इज एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स विच ब्रीच अ सर्टन थ्रेशहोल्ड। तो शैम रूल क्या बोलता है कि आप पहले ही ये चीज स्टार्ट करना, ये चीज अज्यूम करना स्टार्ट कर लेते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट होने वाला है मार्केट में, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है मार्केट में, इसीलिए आप अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट में मेजर्स लेना स्टार्ट करते हो एट द हाउस होल्ड लेवल। ठीक है, आप अपने यहाँ सेविंग्स, अपना एक्सपेंडिचर कम करने लग जाते हो, आप अपने यहाँ अपने लेवल पे मेजर्स लेना स्टार्ट कर लेते हो। ठीक है, देयरफॉर दिस इज एक्चुअली नॉट अ मेजर or an indicator for the economy which has entered recession, but it correlates with the one, कि अगर ऐसा करने लग जाए तो शायद इसके बाद फ्यूचर रिसेशन आना होगा। ठीक है, however the strong financial sector should work on reduction of inflation, that is something which is actually in the market। तो इन्फ्लेशन पे हमें काम करना था, ना कि अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट पे जब ये परसेप्शन मार्केट में चला जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट हाई लेवल पे हो रहा है, तो लोग जो है इन्वेस्टमेंट करना कम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज बीइंग डिस्कस्ड हियर इज कैरी ट्रेड। ठीक है, ये दूसरी टर्म है जो यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। कैरी ट्रेड का मतलब क्या होता है? जापानीज सेंट्रल बैंक्स जो थे वो लो पीरियड इंटरेस्ट रेट पे या लॉन्ग पीरियड्स पे जो इंटरेस्ट रेट था वो कम, लॉन्ग टर्म लोन्स पे कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा देते थे जापानीज बैंक्स।
ठीक है। वो जीरो इंटरेस्ट रेट पे पैसा देते थे अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो। बट उन्होंने रिसेंटली क्या किया, उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज किया। बिकॉज इस इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया इन लोगों ने, तो इससे क्या होगा, अगर कोई जापानीज इन्वेस्टमेंट एशिया के किसी मार्केट में होगी, फॉर एग्जांपल थाईलैंड में जापानीज इन्वेस्टमेंट है या इंडिया में जापानीज इन्वेस्टमेंट है, अब जापान की सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया, तो यहां से ये पैसा निकल के वापस जापान चला जाएगा, क्योंकि वो जो इन्वेस्टर है उसको अब पेमेंट करनी होगी इंटरेस्ट की। कहाँ पे, अपने इंटरेस्ट, अपने वहां पे सेंट्रल बैंक पे या जिस बैंक से उसने लोन लिया है उससे। अब उसको वहां पे पेमेंट करनी है, तो यहाँ इंडिया से पैसा निकाल के वहां लेके जाएगा जो उसने इंडिया में इन्वेस्ट किया था, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट भी हैम्पर हो जाएगा। अब इसी प्रैक्टिस को बोला जाता है कैरी ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक है, डन यहां तक। सो लो इंटरेस्ट रेट्स इन जापान वेर देयर। क्यों लो इंटरेस्ट रेट्स जापान में थे? बिकॉज दे वांटेड टू कॉम्बैट द डेकेड्स लॉन्ग स्लो डाउन। ठीक है, और इसीलिए वो इनडायरेक्टली सब्सिडाइज कर रहे थे अपने फॉरेन कैपिटल को। ठीक है, लास्ट में देर इज वन मोर की टर्म हेयर जिसका नाम है टेपर टेंट्रम। टेपर टेंट्रम टर्म का मतलब क्या होता है कि अगर यूएसए में इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ अ रिजम्पशन ऑफ ग्रोथ, क्योंकि यूएसए में ग्रोथ हो रही है इसलिए वहां पे इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। देयरफॉर फ्रॉम इंडिया, यूएसए का जो कैपिटल इंडिया में इन्वेस्ट किया गया था, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो रही है, तो इंडिया से ये कैपिटल निकल के यूएसए चला जाएगा, जिसको हम कैपिटल फ्लाइट भी बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली इसको कैपिटल फ्लाइट बोलते हैं। दिस विल लीड टू प्रेशर ऑन द एक्सटर्नल अकाउंट, क्योंकि इंडिया के बीओपी पे इंपैक्ट आ जाएगा। एंड इसी चीज को बोला जाता है ये टेपर टेंट्रम। डन। तो यहां तक हमें समझ में आ गया। लास्ट में व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड और व्हाट वी कैन कंक्लूड सच टर्म्स, एंड ये कंक्लूजन हम अपने नोट्स में रख दें, दैट इट वाज कीनीज हु वंस सेड कि अगर आप कैपिटल डेवलपमेंट के लिए, अपनी कंट्री कैपिटल डेवलपमेंट के लिए, इट बिकम्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ कसिनो, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज आप एक सट्टा लगा रहे हो फॉर योर कैपिटल डेवलपमेंट। ठीक है, द जॉब इज लाइकली टू बी इल डन, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी और इकोनॉमिक्स की जो बेसिक फंडामेंटल्स है, दैट आप मार्केट इकोनॉमिक्स को समझो, आप डिमांड एंड सप्लाई को समझो, तब जाके आपको ये समझ आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ पे लगी हुई है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर किसी कंट्री में है और वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो वो कितनी देर के लिए रहेगी। और कसीनो का मतलब यहाँ पे क्या है कि कहीं पे भी अगर कोई भी फॉरेन कंट्री अपने इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करती है, तो दूसरी कंट्री के जो लोकल डोमेस्टिक मार्केट है वो हैम्पर हो जाता है। दैट इज व्हाट कीनीज इज हाईलाइटिंग हियर, कि अगर आप कैपिटल डेवलपमेंट लाइक इंडिया अपना कैपिटल डेवलपमेंट इस चीज पे कर रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, एफडीआई आएगा, एफडीआई आ रहा है, बट अगर आप इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, इस कैपिटल डेवलपमेंट के जरिए को ऐसा समझ रहे हो, और आपका ये कैपिटल डेवलपमेंट का सपना इतनी जल्दी चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स विच आर बीइंग चेंज्ड इन जापान एंड यूएसए, then it's like a casino and the job is ill done which should not happen otherwise। ठीक है, तो आपको अपनी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना होगा। डन। Talking about the monetary policy and monetary policy committee in India, that is something which we should understand is a part of basics। I would have liked to discuss it here, but वो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैंने वो डिस्कस कर लिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में आरबीआई बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेके इंडिया में आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कॉरिडोर्स, बैंक रेट, ठीक है, इसके साथ साथ सीआरआर, एसएलआर,
एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस और ओएमओज जिनको हम बोलते हैं, या मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स, ये सब इनिशिएटिव्स आरबीआई ने लिए हुए हैं फॉर दी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबलाइजेशन। एंड आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का ये टारगेट है कि वो इन्फ्लेशन को टारगेट करे विद 4% ±2%। ठीक है। This editorial is important when we talk about the development in Himalayan states. एडिटोरियल ये बोल रहा है कि हिमालयन स्टेट्स जो हमारे यहाँ है, या हिमालयन रेंज स्टेट्स जो हमारे यहाँ है, इट हैज 11 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है, यहाँ की अर्बन ग्रोथ रेट जो है वो चेंज हो रही है बाई 40%। ठीक है, 40% का यहाँ पे अर्बन ग्रोथ है फ्रॉम 2011 टू 2021। अब अर्बन सिटीज यहाँ पे ग्रो हो रही है, इसके साथ साथ यहाँ पे टूरिज्म भी इंक्रीज हो रहा है। बट प्रॉब्लम ये है, टूरिज्म और अर्बन ग्रोथ के साथ साथ प्रॉब्लम ये है कि एनक्रोचमेंट ज्यादा बढ़ जाएगा और इर्रेशनल डेवलपमेंट होगा, अनप्लान डेवलपमेंट होगा, जिसकी वजह से अनसस्टेन्ड, या आप मान के चलो कि ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा जो बहुत ही, अगर थोड़ी बहुत भी चेंजेस आ जाए टेम्परेचर को लेके, क्लाइमेट को लेके, जो कि हम देख रहे हैं ड्रास्टिक क्लाइमेट इवेंट्स होते हैं इन क्लाइमेट चेंज, जो हमने रिसेंटली देखा, हिमाचल में फ्लड्स आ गए, उत्तराखंड में फ्लड्स आ गए, ठीक है, केदारनाथ में लैंडस्लाइड हो गया, और 2-4 दिन पहले हमने देखा केरला में जो है लैंडस्लाइड आ गया। बट टॉकिंग अबाउट द हिमालयन रेंज स्टेट्स, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, बिकॉज अगर आपने यहाँ की अर्बनाइजेशन पे काम नहीं किया तो दिक्कत होगा। क्यों? आप देखो यहाँ पे ये एडिटोरियल कुछ डेटा दे रहा है आपको जो कि इंपॉर्टेंट है। इट हाईलाइट्स कि यहाँ पे कुछ विलेजेस है और एंक्रोचमेंट हो रहा है। जैसे ये बोल रहा है दैट इन श्रीनगर लैंड यूज हैज चेंज्ड फ्रॉम 2000 टू 2020 एंड विच हैज शोड कि 75% ऑफ द लैंड इज चेंज्ड। लैंड का यूज जो है चेंज हो गया फ्रॉम एग्रीकल्चर टू दी अर्बन स्पेसेस। वाटर बॉडीज का इरोजन हो गया है 25%। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप देखो तो रियल एस्टेट का जो एरिया है वो भी बढ़ गया है। अर्लियर इट वाज 34 स्क्वायर किलोमीटर्स, नाउ इट इज 60 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, and the growth in total is 23.4% of the total municipal area of Srinagar city. So this is such a case study which you can quote and write in your answers very well. आप इसका ये यहाँ पे या तो स्क्रीनशॉट ले लो श्रीनगर सिटी का, या तो आप ये डेटा अपने पास लिख लो, ताकि आपको कल को आसानी हो अर्बनाइजेशन के क्वेश्चंस को टैकल करने में। यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हो रही है? वाटर स्कैरसिटी है, डिफॉरेस्टेशन है, लैंड डिग्रेड हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस कर जाती है, और पोल्यूशन हो जाता है, प्लास्टिक हो, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप देखो तो इको टूरिज्म emphasizing the environmentally friendly tourism is the sustainable way which we can adopt to, but it's a long term, it will ensure us the long term sustainability। ठीक है। However, the climate induced disasters, जो मैंने अभी भी बोला कि क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर्स हाई लेवल पे आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या सजेशंस दे रहा है ये एडिटोरियल, जो हम अपने आंसर में सजेशंस लिख सकते हैं। पहले कि आपको कंसल्टेंट ड्रिवन अर्बन प्लानिंग करनी होगी, आपको अर्बन कंसल्टेंट्स को कंसल्ट करना पड़ेगा, जो अर्बन प्लानिंग टाउन प्लानिंग में एक्सपर्ट्स हैं, उनकी एडवाइस पे काम करना पड़ेगा इन अर्बन डिजाइंस, पहली चीज। एंड दे शुड टेक केयर ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस ऑल्सो। नेक्स्ट थिंग, फाइनेंस कमीशन यहाँ पे एक सेपरेट जो है चैप्टर निकाले अबाउट अर्बन फाइनेंसिंग फॉर दीज हिमालयन रीजन कंट्रीज, Himalayan region states, sorry. Next, the industrial corridors in these areas should have a unique financial situation because they are suffering through, because these countries, these states, sorry, these states in India, the 11 states and 2 union territories, they do face with different kinds of challenges. हम इनको दिल्ली के साथ, मुंबई के साथ, पुणे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, चंडीगढ़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एंड इन दिस टर्म इट ऑल्सो सजेस्ट कि जो हम अर्बन लोकल बॉडीज को सेंटर से ट्रांसफर आ रहा है 0.5% का, वो 1% का हो जाना चाहिए।
इसके साथ साथ पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड इको सेंट्रिक प्लानिंग का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं और अपने नोट्स में लिखने हैं। दिस इज बेसिकली अ स्निप फ्रॉम द क्विज सेक्शन ऑफ द हिंदू एंड इट टॉक्स अबाउट अ करियर गोल्ड स्लैम। तो करियर गोल्ड स्लैम क्या होता है? ये करियर गोल्ड स्लैम होता है कि अगर एक प्लेयर अपने लाइफ टाइम में 4 के 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स ले ले, ठीक है, all the 4 major and Olympic gold medals during the professional career of an athlete, अगर उसको ये मिल जाए तो then that athlete is termed कि उसने अपना करियर गोल्ड स्लैम अचीव कर लिया। ठीक है, दिस इज नॉट अ सेपरेट प्राइज, ठीक है, बट अ टर्म, अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया। तो अभी तक हमारे पास बस 5 ऐसे लोग हैं हु हैव अचीव्ड दिस करियर गोल्ड स्लैम, जिसमें स्टेफी ग्राफ है, एंड्री अगासे, रफाल नडाल, सेरेना विलियम्स एंड नोवाक जोकोविच। ठीक है, ये 5 लोग हैं हमारे पास जिन्होंने ये अचीव कर लिया है। डन, यहां तक इतना ही है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे 2-3 और क्वेश्चंस है इस क्विज में, अगर आप देखना चाहो तो देख लो, बट मेरे हिसाब से यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बस ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपको पता चलेगा अगर आप 2020 और 21 का पेपर देखो, तो वहां पे स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट वक्फ बोर्ड एक्ट। तो बेसिकली वक्फ बोर्ड आया कहां से था? वक्फ बोर्ड एक्ट वाज फर्स्ट इनैक्टेड इन 1954, पहली बार ये बनाया गया था वक्फ बोर्ड एक्ट 1954 में, और 1995 में इसमें एक अमेंडमेंट लेके आ गए थे। ठीक है, एंड ये अमेंडमेंट लेके आ गए थे, क्यों लेके आ गए थे? टू रेगुलेट दी वक्फ प्रॉपर्टीज इन इंडिया। ठीक है, अब वक्फ प्रॉपर्टी होती क्या है और वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी जिसको डोनेट कर दिया गया या दान कर दिया गया फॉर रिलीजियस और कम्युनिटी पर्पसेस, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, गरीब लोगों की मदद करने के लिए, रिलीजन का प्रमोशन करने के लिए इसको डोनेट कर दिया जाता है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड अल्लाह। ठीक है, इन इस्लाम। अब इस्लाम में कोई भी इंसान अपनी प्रॉपर्टी को दे देता है ऊपर वाले के नाम पे, और उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया जाता है। वक्फ बोर्ड के कुछ प्रोविजंस ये हैं कि इसका जो चीफ होता, सीईओ होता, वो एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होगा, और वह अधिकारी का मुस्लिम होना अनिवार्य था, जरूरी था। और इसके साथ साथ ये भी समझना है कि यहाँ पे कुछ प्रोविजंस ऐसे, अभी जो ये बिल है ये इसलिए डिस्कशन में है क्योंकि ये वक्फ बोर्ड एक्ट को अमेंड करना चाहती है। और ऐसे ही बोर्ड्स तमिलनाडु, कर्नाटका में टेम्पल बोर्ड के नाम से भी हैं, हु आर रेगुलेटिंग दी टेम्पल्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया हमें कि वक्फ बोर्ड भी है, टेम्पल बोर्ड भी है। वक्फ बोर्ड का चीफ जो है एक सीईओ होता है, आईएएस अधिकारी होता है, जो सीनियर लेवल का आईएएस अधिकारी होता है, और उसका मुस्लिम होना जरूरी होता है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द चेंजेस विच दिस वक्फ बिल वांट्स टू इंट्रोड्यूस? जो थोड़े बहुत चेंजेस हमें याद रखने हैं बस, क्योंकि जब ये बिल एक्ट बन जाएगा उसके बाद जो होगा वो अलग कहानी है। मैं इसलिए यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज यूपीएससी 2024 में जो वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था उस पे क्वेश्चन आ गया था, वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये चीज यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ताकि हमें ये चीज थोड़ी बहुत समझ आ जाए कि एक्चुअल में है क्या। चेंजेस क्या क्या है? सबसे पहली चेंज है 1995 के एक्ट को चेंज करना है। ठीक है, दूसरा चेंज क्या है कि वक्फ बोर्ड में 2 मुस्लिम वुमेन होंगी एज रिप्रेजेंटेटिव्स। दूसरा, यहाँ पे कुछ नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी होंगे। ठीक है, तो क्या ये आर्टिकल्स के अगेंस्ट में है? क्या ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है? फंडामेंटल राइट टू रिलीजन 25, 26 के अगेंस्ट में है? आर्टिकल 26 हमें बोलता है अबाउट द रिलीजियस डिनोमिनेशंस। ठीक है, इनके पास राइट टू प्रॉपर्टी होता है और ये अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं, दैट इज राइट टू दी रिलीजियस डिनोमिनेशंस। अब यहाँ पे समझना ये है कि क्या ये एक्ट
फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है, तो हम लोग नहीं बताएंगे कि ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है या नहीं। जो बताएगा वो होगा कोर्ट। तब तक आप ये डिस्कशन अपने दिमाग में लाओ ही मत कि ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है। अभी तक हम ब्यूरोक्रेट्स हैं और हमें ये समझना है कि ये जो एक्ट है ये बस हमें एक्ट के रूप में पढ़ना है, ये बस हमें एक बिल के रूप में पढ़ना है कि इस बिल के प्रोविजंस क्या क्या है। इसका जूरिस्प्रूडेंस या इसके ऊपर डिसीजन वो कोर्ट देगा। वो जब आएगा, जब ये चैलेंज होगा, जब ये एक्ट पास होगा, उसके बाद ये कोर्ट में चैलेंज होगा, उसके बाद की चीजें अलग से बताई जाएंगी। बट यहाँ पे चीफ चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि ये बिल हमारे होम मिनिस्टर जी क्यों लेके आ गए। ये बिल इसलिए लेके आ गए क्योंकि बहुत सारे, अगर आप देखो, वक्फ बोर्ड के पास इट्स अराउंड आई गेस 13 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड और 9 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज देयर विद द वक्फ बोर्ड। ये थर्ड लार्जेस्ट बॉडी है इंडिया में आफ्टर रेलवेज एंड आर्मी, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। ठीक है। अब समझना यह है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज पे ऑलरेडी बहुत सारी लिटिगेशंस चल रही है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। क्यों ऐसी लिटिगेशंस चलती है? क्योंकि वक्फ के पास पावर्स है। वक्फ के पास पावर है कि अगर इन्होंने किसी प्रॉपर्टी को बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये डिक्लेयर कर दिया और ये वक्फ बोर्ड ने पास कर दिया ये रेजोल्यूशन, देन दिस प्रॉपर्टी इज, ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है। हो गई प्रॉपर्टी। अब अगर कोई इंसान एबीसी क्लेम कर रहा है कि नहीं ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, वक्फ की तो प्रॉपर्टी है नहीं, बट वक्फ ने इसको डिक्लेयर कर लिया कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट और द बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो इस एबीसी के ऊपर जाता है कि इसको प्रूव करना पड़ता है कोर्ट में कि ये प्रॉपर्टी इसकी है या नहीं। वक्फ बोर्ड को प्रूव नहीं करना पड़ता है। ठीक है। एंड रिसेंटली दिस वक्फ बोर्ड ऑल्सो क्लेम्ड कि ताजमहल को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देना चाहिए। सो दीज वेर सम ऑफ द कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो यहाँ पे हमने समझ लिए। इसके बाद ये न्यूज आर्टिकल है, मैं आपको बस यहाँ पे एक अपडेट देना चाहता हूं जो आपको समझना है, क्योंकि यूपीएससी में इस टॉपिक से, इस थीम से क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यूज में। क्वेश्चन क्या है कि ड्रग्स का अप्रूवल, कोई भी दवा है उसका अप्रूवल देना। ठीक है। तो हमारे यहाँ उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे यहाँ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये अप्रूवल देती है। ठीक है। बट ड्रग के अप्रूवल से पहले उसका ट्रायल होता है कि क्या ये ड्रग, यूजुअली 3 बार ट्रायल होता है या 2 बार ट्रायल होता है, फील्ड ट्रायल होता है। ठीक है। क्लोज लूप ट्रायल होता है। ठीक है। पहले माइस पे ट्रायल होता है या चूहों पे ट्रायल होता है, मंकीज पे ट्रायल होता है, और उसके बाद इस ड्रग को ह्यूमन ट्रायल में लाया जाता है, और उसके बाद इसके साथ साथ प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है, प्लेसिबो ट्रायल के साथ साथ इसको चलाते हैं एंड देन इट गेट्स अप्रूवल एंड देन इट्स डन। बट यहाँ पे एक रेयर एक रूल अमेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है एंड इन्होंने बोला कि अगर कोई ड्रग, और इसी चीज को हमें याद रखना है, अगर कोई दवा ऑलरेडी अप्रूव्ड है, कहाँ पे, यूएसए में, यूके में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में या यूरोपियन यूनियन में, कितने नेशंस हो गए ये, 5 नेशंस और यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, अगर यहाँ पे कोई ड्रग ऑलरेडी अप्रूव्ड है, ठीक है, तो उसको इंडिया में ट्रायल के थ्रू जाने का जरूरत नहीं है। अब ये कौन कौन सा ड्रग है? ये 5 नए ड्रग्स होंगे जो 5 कैटेगरी से होंगे। कौन कौन सी कैटेगरी के ड्रग्स होंगे ये? एक, जो रेयर डिजीज के ड्रग्स होंगे। दूसरा, जो जीन एंड सेल्यूलर थेरेपी के ड्रग्स होंगे। तीसरा, न्यू ड्रग्स इन पैंडेमिक, अगर कोई पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आती है और उसमें कोई ऐसा ड्रग है जिसको यूएसए ने अप्रूव कर दिया है, तो उसको इंडिया में ट्रायल के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, जैसा पैंडेमिक हमने पिछली बार देखा कोविड-19 का। वैसे ही न्यू ड्रग्स फॉर द स्पेशल डिफेंस पर्पसेस और द न्यू ड्रग्स हैविंग थेरापेटिक एडवांसेस। ठीक है।
कोई भी थेरेपी वाला ड्रग, अगर यहाँ पे इन 5 कैटेगरीज में से कोई ड्रग है, अगर उसको ऑलरेडी इन 5 कंट्रीज ने और यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव कर दिया है, तो उसको इंडिया में अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ट्रायल की जरूरत नहीं है ऑलरेडी। बट अप्रूवल तो उसको चाहिए ही चाहिए, अप्रूवल उसको जरूरी है लेना, बस ट्रायल के थ्रू नहीं जाना है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे गवर्नमेंट का रूल क्या है? द रूल इज रूल 101, which says that new drugs and clinical trial rules 2009, जो इस क्लिनिकल ट्रायल्स को रेगुलेट करता है। ठीक है। और इसी रूल को अमेंड करके यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये चीज बताई है दैट ऐसा होने वाला है। डन, ये चीज हमने याद रख ली। शिव नाडियार्स कौन थे? ये 63 नयनार्स में से थे, एंड इतना ही हमें याद रखना है दैट नयनार्स वेर शेवाइट्स। ठीक है। एंड दे वेर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द शिवा। ठीक है। नयनार्स एंड अलवार्स। ठीक है। अलवार्स एंड नयनार्स, दे वेर भक्ति सेंट्स ऑफ साउथ इंडिया, मोस्टली फ्रॉम साउथ इंडिया। उन्हीं में से कुछ लोग जैसे रामानुजा, वो साउथ इंडिया से उठ के ऊपर आ गए और उन्होंने नॉर्थ इंडिया में भी स्प्रेड किया भक्ति मूवमेंट को। ठीक है। यहाँ पे समझना है शिवनाडियार्स कौन थे, बस। प्रोटेक्टर्स ऑफ शिवनाडियार। शिवनाडियार क्या है? दीज आर द ऑफरिंग्स, दीज आर द आइडल्स, दीज आर फ्लावर्स, जो भी चीजें शिवा को प्रेजेंट की जाती है वो। और यहाँ पे एक पल्लव किंग कजहरिंगा का जिक्र है, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें ये समझना है शिवनाडियार्स क्या है, बस। अब यहाँ पे एक अपडेट है अबाउट द आरबीआई एंड द रीसेंट अनाउंसमेंट विच आरबीआई हैज मेड। 3 चीजें यहाँ पे हमें याद रखनी है। पहली चीज क्या है कि आरबीआई विल अलाउ यू कि आपको अगर टैक्स का पेमेंट करना है, तो आप टैक्स का पेमेंट 5 लाख तक का, अप टू 5 लाख रुपीज तक का पेमेंट आप यूपीआई से करो। पहली चीज। दूसरी चीज, आरबीआई एक ऐसा चीज लेके आ रही है जिसका नाम है डेलीगेटेड पेमेंट। ठीक है। डेलीगेटेड पेमेंट का मतलब क्या है कि अगर इंसान ए, इसका कोई बैंक अकाउंट है, ठीक है, इसके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, तो ये अपने यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकता है। बट डेलीगेटेड पेमेंट का मतलब ये है कि ये जो ए है, इसी के बैंक अकाउंट से बी, जो ए ने इसको पावर दिया है, डेलीगेशन दिया है कि बी भी मेरे अकाउंट से पेमेंट्स कर सकता है फ्रॉम द सेम अकाउंट। अकाउंट एक ही है, बैंक एक ही है, ए का अकाउंट है, पेमेंट दो लोग कर रहे हैं, ए भी पेमेंट कर रहा है, बी भी पेमेंट कर रहा है, इसको बोलते हैं डेलीगेटेड पेमेंट। ये वाला जो इंटरफेस है, ये भी आरबीआई रिसेंट जल्दी ही लॉन्च करने वाला है। तीसरा चीज हमारे पास जो याद रखना है दैट इज चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ठीक है। तो इसमें होता क्या है चेक ट्रंकेशन सिस्टम? ये ऑलरेडी ये जो टर्म्स है, ये यूपीएससी बहुत बार पूछ चुका है ऐसी ऐसी टर्म्स को, इसीलिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। चेक ट्रंकेशन सिस्टम में दिस वुड बी रिक्वायर्ड कि जो चेक आप बैंक में जाके जमा करते हो, उस चेक को क्लियर करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने आज 9 अगस्त को चेक जमा किया, वो चेक एक दिन का टाइम ले सकती है, तो वो 10 अगस्त को बैंक क्लोजिंग टाइम तक, 24 घंटे तक क्लियर हो सकती है। दिस कैन टेक दीज आवर्स। बट आरबीआई इज सेइंग कि ये जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, इसको हम चेंज करेंगे। जो अभी 2 दिन ले रहा है, ठीक है, जिसमें अभी 2 दिन लग रहे हैं, या जिसमें अभी T+1 डेज लग रहे हैं, इसमें देर विल बी ओनली फ्यू आवर्स ऑफ टाइम जिसमें चेक का क्लियरेंस हो जाएगा, बस। ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता क्या है? इसमें आपने एक बैंक का चेक जमा कर दिया, फॉर एग्जांपल आप आईसीआईसीआई बैंक में आपका अकाउंट है, और ये अकाउंट ए का अकाउंट है, और दूसरा किसी इंसान का अकाउंट है एसबीआई बैंक में, और ये बी है। ए ने बी को पेमेंट करना है, ए ने बी को चेक दे दिया। अब ये जो चेक है, ये आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट का है, और बी जो है ये चेक लेके चला गया और इसने ये चेक जमा कर दिया एसबीआई के पास। अब एसबीआई और आईसीआई बैंक को आपस में ये सेटलमेंट करना है इस चेक का। ये चेक एसबीआई बैंक से जाके आईसीआईसीआई बैंक में जमा होगा।
आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट से पैसा निकल के एसबीआई बैंक के अकाउंट में पैसा आएगा, फिर एसबीआई ये जो पैसा है यहां से निकाल के बी के अकाउंट में डाल देगी। ठीक है। अब इस पूरे सिस्टम को चेक ट्रंकेशन सिस्टम बोलते हैं। ये अभी तो हो रहा है बहुत ही कम टाइम में एनईएफटी आरटीजीएस के आने के बाद, बट चेक का क्लियरेंस जो है, चेक्स को जमा करना, एक बैंक की चेक्स जो एक बैंक के पास पड़ी होती है फिर उसको वो दूसरे बैंक को देनी होती है, इस सिस्टम में टाइम लगता है 2 दिन का। ठीक है। जो कि अब जाके कम होगा, विद इन फ्यू आवर्स ये हो जाएगा। लास्ट में देयर इज दिस रीजन नेम्ड कुर्स्क रीजन ऑफ रशिया। कुर्स्क रीजन अभी न्यूज में इसलिए है बिकॉज यहाँ पे एक वर्ल्ड का बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, किसका? रशिया का। ठीक है। और दूसरा रीजन इसका क्या है न्यूज में होने का? यूक्रेन से कुछ हजार ट्रूप्स, 1000 ट्रूप्स फ्रॉम यूक्रेन, दे हैव अटैक्ड दिस रीजन। ठीक है। और ये जो रीजन है ये एक बॉर्डर टाउन है, किसका? रशिया का, जिसका नाम है सुद्जा। ये लोकेशंस याद रखनी है, वन इज कुर्स्क रीजन एंड अनदर इज सुद्जा, अ बॉर्डरिंग टाउन ऑफ रशिया। ठीक है। ये दो चीजें याद रखी। ये कुर्स्क रीजन कहाँ पे है? ये इस एरिया में है रशिया के। ठीक है। यहीं पे हमला हुआ है। और ये है सुद्जा आपका जो सिटी यहाँ पे न्यूज में आ रहा है। यूक्रेन के फोर्सेस इस साइड में एंटर किए हैं। इससे पहले जो हमने देखा न्यूज में जो एरिया था वो था लोहांस्क, खार्किव ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ लिया है। तो ये सारी रीजन्स जो है याद रखने जरूरी है। ठीक है। डन यहां तक। लास्ट में हमारे पास ये क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी ने 2023 के पेपर में पूछा था, जीएस 2 में पूछा था। दिस क्वेश्चन इज अबाउट सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, कि ये सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा है फॉर वुमेन्स इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर्स। कि कितने ऐसे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है जो औरतों को एम्पावर कर रहे हैं ताकि वो औरतों का पार्टिसिपेशन बढ़ा सके और उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सके, कहाँ पे? लेजिस्लेचर के अंदर। सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज अबाउट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन को ये डेडिकेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर सकते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन दी 18th एंड 17th लोकसभा। ठीक है। कितना रिप्रेजेंटेशन है अभी, यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये डेटा होना चाहिए, हमारे पास ये एग्जाम्पल्स होने चाहिए, 5 से 10 एग्जाम्पल्स, या अगर मिनिमम हमारे पास तो 5 एग्जाम्पल्स होने चाहिए ऑफ दीज सिविल सोसाइटी ग्रुप्स विच आर वर्किंग इन दिस डोमेन, जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन बढ़ाने में काम कर रहे हैं। ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास ये डेटा भी होना चाहिए कि किस स्टेट में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का और किस स्टेट में कम रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का। लास्ट में वी कैन सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड। ठीक है। कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर ये कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। इन सच सिनारियो यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ द क्वेश्चन, और यहाँ पे सेम चीजें डिस्कस की गई होंगी जो हमने यहाँ पे समझी। ठीक है। अभी के पार्लियामेंट में लास्ट टाइम जो पार्लियामेंट था 17th लोकसभा 2023 में 14.3% were women representation in the parliament. Or, however, there are some NGOs and community-based groups and even some political parties also, like कांग्रेस ने भी लास्ट टाइम बोला था कि हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, बीजेपी ने भी बोला था हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, अपनी पार्टी टिकट्स वुमेन को ज्यादा देंगे। ठीक है। इन स्टेट legislatures, women constitute 50% of the population. The large number of female can collaborate across party lines, एंड वो पार्टीज को क्रॉस करके बिकॉज ऑफ द फीमेल बॉन्ड दे कैन हेल्प इन डेवलपिंग बेटर पॉलिसीज। वुमेन कैन ऑल्सो एक्ट एज रोल मॉडल्स, लाइक हमारी सुषमा स्वराज जी, वैसे ही रोल मॉडल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, किरण बेदी जैसी रोल मॉडल्स हम क्रिएट कर सकते हैं इन सच सिनारियो। इफ यू सी, देयर इज फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नेशनल अलायंस फॉर वुमेन, विच वॉज फॉर्मुलेटेड which has formulated the Women's Manifesto in 1996, which demanded the reserved seats or the reservation of women in state legislature and parliament. अभी भी हमारे पास ये नहीं था,
बट रिसेंटली ये हमारे जो पार्लियामेंट है यहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ था, जिसमें वुमेन के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात किया गया था, जो अगली लोकसभा से इम्प्लीमेंट होगा। इसके साथ साथ असम में a coalition of 5 women-led NGOs published the Women's Manifesto 21, which advocated for women's reservation. वैसे ही हमारे पास एक और एनजीओ है जिसका नाम है भारत जागृति, which is found by K. Kavita. This also talks about the active representation of women, and this helped in passing the women reservation bill recently. ठीक है, तो इसके साथ साथ बाकी सारी वुमेन पार्टीज भी यहाँ पे डिस्कस की गई है, पॉलिटिकल पार्टीज, समाजवादी पार्टी, एनजीओज, एडीआर एंड अदर things which are relevant to the effective participation of women. With this, I conclude this discussion and I wish you all the best for your day ahead and for your preparation. In case you need any mentorship, you can connect to us through our official handles. Thank you. Have a nice day ahead.